افضل خان. ہاں 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 کیا بات ہے. جی افضل ہیلو صاحب مومن ہے سر؟ ہاں سن رہے ہیں آپ؟ سر مومن ہیلو ہے؟ ہاں ہاں مومن ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ سے مومن ہے. نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ ہاں 5 وقت ہے. 5 وقت کی پڑھتے ہیں. آیت ہاں الکرسی آتی ہے آپ کو؟ ہاں میں اس کو میننگ بھی آتا ہے مجھے. ارے واہ، چلیے سنائیں آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کا معنی پتا ہے تمہیں؟ نہیں پہلے 3 لائن پڑھو پہلے، اور اس کے بعد پھر معنی بتاؤ، پھر اسی پہ آپ سے سوال کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو کیا آیت الکرسی والا ہے؟ سناؤ. میرے کو اتنا نہیں پتا ہے، تھوڑا کم پتا ہے. ساحل جیسے ہی تو نے کہا ہے نا کہ مانا بھی اس سے بعد سوال کریں گے، اسی وقت اس نے کہا مجھے اتنا نہیں پتا، تھوڑا کم پتا ہے. پہلے اسے مانا بھی پتا تھا، تو نے کیوں کہہ دیا سوال کرنا ہے؟ مانا بھی بلا دیا بندے کو. ہاں تم سنو یار ساحل ایسا اتنا کیوں تم کیا پڑھا یار؟ ہے تو نے نا، کیوں کہا کہ سوال کریں گے؟ اتنا تم پڑھا ہے نا میں اتنا ہی پڑھا ہوں. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ سے بھی زیادہ. کچھ نہیں سمجھ. نہیں میں اللہ سے زیادہ نہیں سمجھتا، میں اللہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. اور بتاؤ. تم نے بولا ہے. اچھا غصہ نہیں ہونے کا افضل صاحب. سنو افضل صاحب ہمارے جو ہے، میں حق کے بات کر رہا ہوں، میں حق کے بات کر رہا ہوں. اب اچھا اس میں پہلے میرا آیت الکرسی کو سنا دو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سنا ہے اچھا آپ نے؟ ہاں کوئی مشکل نہیں، بہت بہت شکریہ. افضل صاحب توحید جماعت سے ہے کیا آپ؟ نہیں میں پڑھائی کی ہے، میں نے صحیح البخاری اور تفسیر کبیر، جو آپ نے جو گوگل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، میں نے ویسے نہیں پڑھائی کی ہے، میں نے اصلی والے کتاب پڑھائی کی ہے. ماشاء اللہ، یہ تو بڑی ارے زبردست ہنسنا بات مت ہوگی. کرا. ابے افضل آدم بھائی صاحب، آپ افضل ساحل بھائی صاحب تم سنو 2 نا. منٹ روکنا. میں آدم بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا چلو بات تم کر لو. کیا اچھا مفاد سنو ہے آپ کا؟ ایک منٹ میں پہلے معاملہ. افضل بھائی گرم توے پہ نہیں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو بات کرنے کا موقع دے دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ بھائی گوگل یونیورسٹی سے نہیں پڑھے ہیں، پراپرلی کتابوں سے پڑھے ہیں. ہمیں دل سے خوشی ہوئی کہ آپ جڑے. آپ جیسے لوگ ہی ہمیں چاہیے جو پڑھے لکھے ہو اور آ کے بات کر سکے. ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں. بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کچھ چیزیں تاکہ ڈسکشن آپ کی اچھے سے ہو. ایک تو یہ کہ گرم توے پہ آپ نہ بیٹھے، خود بھی سنیں، سامنے والے کی بات بھی سنیں، ہائپر نہیں ہو، اور جو بات آپ کریں گے ریفرنس کے ساتھ کریں گے. پرسنل اٹیک آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ پرسنل اٹیک کریں گے تو آپ کو معلوم ہے، اگر آپ تھوڑے دن سے بھی اگر سٹریم دیکھ رہے ہیں تو پھر ایڈم صاحب جو ہے وہ آپ پہ کچھ نہیں بولیں گے، وہ سیدھا محمد صاحب کو کچھ بولیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دم تحمل سے آرام سے بات کرو. آپ کو ہم سٹیج دیں گے اور پورا موقع دیں گے اپنی بات رکھنے کا. ٹھیک ہے پیارے افضل بھائی، پلیز گو ایڈ. ہاں ٹھیک ہے. تو آدم صاحب سے تھوڑا عربی کا وہ آیت الکرسی کا آگے کا تھوڑا مطلب بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا مطلب؟ ہاں مطلب آپ کو پتا ہے نا، بہت زیادہ پتا ہے، میں نے سنا ہے آپ پرم گیانی ہے. اف، میں نے کب کیا میں پرم گیانی ہوں؟ نہیں میں نے سنا ہے، جتنا میں نے سنا ہے نا، میں نے آپ کو میں نے کب تو مجھے کہا لگتا پرم ہے گیانی ہوں؟ آپ کے باتوں سے تو لگتا ہے آپ سے کسی نے ون سیکنڈ، پوچھا. میں نے تو نہیں نہ کہا سر. میں نہیں نے نہیں کہا کبھی میں میں نے پرم گیانی ہوں؟ کسی نے آپ کو پوچھا تھا، آپ نے جواب دیا تھا میرا نام وسا تھا سر آدم نبی علیہ السلام. واپس آپ کو آتے ہیں، جتنا واپس پتا آتے ہے ہیں، ریلیکس، اتنا واپس آتے پتا ہیں. ہے. نہیں نہیں میں ریلیکس، ایسا ہی بات کرتا ہوں، آپ ریلیکس، کو تھوڑا کم لگ رہا ہوتا. ریلیکس. باری ریلیکس باری، ہی ہوں بھائی. باری باری. ہاں میں نے کبھی بولا میں پرم گیانی ہوں؟ نہیں نہیں میں نے نہیں بولا نا، میں ایسا لگتا ہے آپ کی بات نہیں کر رہا. میں میں نے کبھی بولا میں پرم گیانی ہوں؟ میں آپ کا تو نہیں بولا، میں میرا بات بولا نا. مجھے لگتا ہے میں اوکے کیا سو، بولا، مجھے نہیں آپ لگتا کا ہے ایک آپ. سیکنڈ حضرت، ریلیکس ہاں سنیں، پہلے حقیقت میں پوری اسٹیٹمنٹ سنیں. اگر میں نے نہیں بولا تو بھائی آپ جو صحیح. مرضی سمجھتے رہے، مجھے اس سے کیا پرواہ ہے؟
मैं समझ रहा हूँ ना भाई, आपको कोई परवाह नहीं होना आपके चाहिए। समझने से मुझे परवाह नहीं है, जो मैंने आप बोला है मेरे, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, मुझसे जो मुझे आप भी परवाह, समझते हैं उसके ऊपर आप मुझसे बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जो समझते। मैंने अब मेरे, बोला है ना, सुने, ये एक सिंपल चिल्लाना सी बंद बात होती करो, है, दुनिया में किसी भी चिल्लाना बंद जगह पे आप करो, जाओगे यार, चिल्लाना सुनो बंद पहले, करो। दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाओगे ना बात करने किसी भी बंदे से, ठीक है, तो जो बंदे ने बोला होता है ना उसके ऊपर आप क्वेश्चन रख सकते हो, जो आपने अपने पास से उस बंदे को समझा है ना उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं रख सकते। सो वंस अच्छा, अगेन, जो मैंने बोला है उसके ऊपर क्वेश्चन रख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपका ऊपर याद है, ठीक है। तो थोड़ा आप आयतुल कुर्सी का मतलब बताएंगे? मैं बताऊं? हाँ हाँ, आप मैं बताएंगे। क्यों बताऊं? आप आप इस्लाम की इतना समझा है ना, आप इतना बदनाम कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा। ओके, पहले बता दे आयतुल कुर्सी दी किसने? आयतुल कुर्सी अल्लाह ने दी है। ये जिब्रील अल्लाह की कहते हैं, कलाम है। जिब्रील, हाँ अल्लाह का ही कलाम है। अल्लाह का कलाम है, इसका मतलब है ये अल्लाह ने हरफ बाय हरफ कहा था। अल्लाह ने कहा नहीं होगा किसी, क्योंकि अल्लाह को मुंह नहीं होता है, इंसान को मुंह होता है। अल्लाह बोल नहीं अल्लाह सकता। जिब्रील का, अल्लाह बोल नहीं सकता। तो अल्लाह बोल अल्लाह नहीं हमारा सकता। हिस्सा, हमारा हमारा दिमाग से बाहर है। नहीं नहीं, जैसा आपका वापस आत्मा आते हैं, होता है। वापस आते हैं, वापस आते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पहले पहले बोल मेरे नहीं सकता, मेरा हाँ या ना, स्टेटमेंट, दोबारा से कंफर्म करें। अल्लाह कौली ही ताला अल्लाह, का ये मतलब नहीं होता। सुनो सुनो आदम भाई, कौली ही ताला अल्लाह का बोल है, इसका मतलब नहीं होता अल्लाह मुंह से बोलता है। आपको अरबी समझना चाहिए पहले। मैंने बोला है मुंह से बोलता है, मैंने बोला है मुंह से हम्म, बोलता है, पिछवाड़े से बोलता है, नहीं नहीं, कान से बोलता है, नाक से कौली ही, बोलता है। कौली ही मेरा ताला का स्टेटमेंट मतलब, है, सर सर, हम्म, एक तो इंटरप्ट ना नहीं नहीं, किया करें जब सवाल कर आप रहा होता हूँ। जिलेबी बनाओ, आप जिलेबी बनाओ मत, आप सर जिलेबी जी, बनाओ, आपको सर जी पहले जब मैं अरबी सवाल कर अरबी रहा का, होता हूँ यार देखो, साहिल ने भी आपको बोला था गरम तवे पे नहीं रहना, बोला था ना साहिल ने, गरम तवे पे नहीं रहना। हाँ, सुनो भी सुनाओ भी। आपकी बात मैं सुनूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे तो ही बात होगी। मैंने आपसे सवाल किया है क्या अल्लाह बोलता है, आपने कहा नहीं बोलता है। फिर लेकिन फिर आपने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया, आपने कहा वो मुंह से नहीं बोलता, मैंने मुंह का लफ्ज नहीं यूज किया। ठीक है। हाँ जी, तो अल्लाह बोलता आपका है कि नहीं? बताइए कैसा होता है? हाँ, ठीक है, ठीक है, पहले आप खत्म करिए फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है बोलिए। दोबारा से पूछता हूं, क्या अल्लाह बोलता है कि नहीं? नहीं बोलता अल्लाह, अल्लाह नहीं बोलता। आर यू नहीं बोलता। 120% श्योर कि अल्लाह का कोई साउंड नहीं है? 100%, 100 नहीं, 1000%। आप 1000% श्योर हैं कि अल्लाह का कोई साउंड नहीं है? हाँ हाँ हाँ, नहीं बोलता हूँ, नहीं। ओके, ओके, आगे बढ़िए। बताने लगा हूं सर, कोई मसला ही नहीं। अब मैं तो सर रेफरेंस पहले दिखाता नहीं हूँ, नहीं बात बाद में करता हूँ। नहीं, आपको पता मैं ना इस बात मेरी का? मेरी मेरी एक आपको स्टेटमेंट पता है ना इस सुनोगे आप? बात का कि मैं स्टेटमेंट मेरी सुना एक बात सुनोगे? मेरी एक बात सुनो, एक बात, ठीक सुनाए है। ना भाई, सुनाए सुनाए सुनाए। हाँ ठीक है। मैं जब 9 साल या 10 साल होता था ना, मैं पढ़ाई करना शुरू किया था इस्लाम में, तब मैंने बहुत, आप जैसे बहुत लोगों को मैंने तब से डिबेट करना शुरू किया था। ठीक है, वो बहुत आप बहुत करते रहे, बहुत। वो आप करते रहे, वो हाँ, आप करते रहे, उससे मुझे तो मसला मेरे को नहीं है। 13 साल मैं हो आपको गया, कुरान से 13 दिखाता साल हो हूँ, गया। मैं आपको कुरान से हाँ दिखाता हूँ जी, कि अल्लाह बोलता नहीं नहीं, हाँ बोलिए, है। भाई, दिखाइए। भाई रोना नहीं है मेरे सामने, और अपनी बड़ाई कम बयान अरे करें। यार, मैं कुरान हंस चैप्टर रहा नंबर हूँ। 20 आयत नंबर, यार इंटरप्ट नहीं, कुरान चैप्टर हाँ नंबर 20 हाँ, आयत नंबर 11, इंटरप्ट नहीं, जिप योर माउथ। कुरान चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 11, एंड व्हेन ही केम टू इट ही वाज कॉल्ड, जब वो आया, नहीं, कैन यू प्लीज शट अप, लेट मी रीड द कुरान। अरे अफसल भाई, ये देखो अभी कितना गलत तरीका है, आप बीच में ओके इंटरप्ट ओके, क्यों कर रहे मैंने कुछ नहीं किया, बोलिए। ओके, फिर जब वो आया इसके पास, तो आवाज आई, ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड ओ मोजेस, या मूसा, इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं रब हूं तेरा। जी सर, अल्लाह नहीं बोलता तो यहाँ पे कौन बोल रहा है मूसा के साथ डायरेक्टली? भाई, मैं अब आप सुनना है, ठीक है, मैं बोलूंगा, ठीक है आदम भाई। हाँ? थोड़ा आप थोड़ा ऊपर का आयत उठाएंगे। अरबी कैसा पढ़ता है मैं सिखाता हूँ मैं आपको आज। कुरान कैसा पढ़ते हैं। ऊपर का आयत उठाइए।
फलम्मा जब, मेरे को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जूम करेंगे आप? जूम कर दो भाई, के लिए जूम कर दो। फलम्मा आताहु नूदी, फलम्मा आताहु नूदी या मूसा, जब मूसा ने भी ये आए। देख के भी गलत पढ़ रहे हैं आप अफसल साहब, कोई देख बात के भी नहीं, गलत पढ़। गोली चलो। मार यार, गोली मार, इसे जवाब देने दे यार। मैं भी हंसा था इसी वजह से कि उसने गलत पढ़ा, लेकिन अब क्या करें साहिल, मैं जवाब सुनना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं यार पढ़ अच्छा, सुन, पहले सुनो। जब तुम आज तक तुमको जो भी मिला है ना, मैं वैसा नहीं हूँ, थोड़ा सुकून से। हेलो, मैंने साहिल को चुप कराया कि तुम्हारी अरबी की गलती ना निकाले, इसलिए ना निकाले कि ताकि तुम ये पढ़ लो और मुझे जवाब दे दो। सो प्लीज डोंट टीच द टीचर, प्लीज रीड एंड आंसर। अब अपने आप से ही म्यूट करा रहे हो। रीड एंड आंसर यार प्लीज। अच्छा आप जवाब दे दो अफसल भाई, अफसल भाई पहले आप जवाब मर्दानगी दिखाओ, मर्दानगी दिखाना चाहिए, किसी का मुंह बंद करके उसके सवाल नहीं करना चाहिए। यार भाई प्लीज रीड एंड आंसर। अब इसके बाद आप एक कंडीशन रख देते हैं, इसके बाद म्यूट नहीं करेंगे। आप अब बीच जब में नहीं इतना बोलना। कर रहे हो ना, जब मैं बोल रहा हूँ ना, तब तुम भी यार नहीं बोलो ना, उस चीज पे बोलो, इधर उधर नहीं बोलो, चीज पे बोलो। अरे शट अप करना, तू क्यों हवा में उड़ रहा है? यार साहिल इसको सही कर ले यार, नहीं तो मेरा टेम्परामेंट खराब होने लगा। अरे अफसल भाई ये तो अभी आप ये भागने का तरीका निकाल रहे हो ना, पहले सवाल में ही आप फंस गए तो आप भागने का तरीका निकाल रहे हो। अब आप जो है वो लड़ाई करोगे, गालियां सुनोगे, खुद भी गाली सुनोगे, मोहम्मद साहब को भी गाली दिलवाओगे, ये तरीका सही नहीं है ना। हम आपको कितना रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि आप सीधा, अब मेरी गलती हो गई, आपको नहीं टोकना चाहिए था। आप सीधा जो आर्ग्यूमेंट है इस आयत पे, आपको जो कहना है वो सीधा कह दो, कुछ मत बोलो, सीधा आर्ग्यूमेंट आपका इस आयत पे क्या है वो सीधा बोल दो। ठीक है अफसल भाई, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी, आदम भाई भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, प्लीज वो क्या ना, आर्गुमेंट जो आता है ना, दोनों को इक्वल हिस्सा होना चाहिए। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, आप फिर से वही करोगे, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले से। अच्छा आगे बढ़ो प्लीज। हाँ, अभी इधर ये कहना क्या चाहते हैं, आवाज किधर से आया? जब इधर दुनिया में बोलने के लिए मुंह होता है, ठीक है, अल्लाह को बोलने के लिए मुंह नहीं चाहिए होता है। तो आपका दिमाग में जो भी अल्लाह का है ना, वो अल्लाह नहीं है, ठीक है? सुना भाई? आपने आयत पढ़ के मुझे कुछ बताना था, प्लीज वो पढ़ के बताएं। मैं आर्गुमेंट आपका? ये आर्गुमेंट है, नहीं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपका जो ये है होता है ना, नहीं, आप मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा, इससे टॉपिक से आप निकालना क्या चाहते हैं, ये बोल दीजिए आदम साहब। भाई वो मेरी हेडिक नहीं है, आपकी हेडिक नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि अल्लाह बोलता है। फिर आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में, आपने मुझसे सवाल किया, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। लेट मी फिनिश माय आंसर बिफोर यू आंसर। ओके। आपको मैंने पढ़ के दिखाया, अल्लाह मूसा से डायरेक्ट बात कर रहा है और अल्लाह मूसा को डायरेक्ट आवाज देता है, ओ मूसा। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहता है कि मैं तेरा रब हूं। आपने कहा ये अल्लाह नहीं बोल रहा है। अब आप आयत पढ़ने लगे थे, आपने कहा एक आयत पीछे जाओ, जूम करो, मैंने जूम भी कर दिया। आयत पढ़ के आपने कोई जवाब देना था, प्लीज आयत पढ़ के जवाब दे दें। देखो आदम भाई, मैंने नहीं कहा था, या अल्लाह नहीं बोला, ये आपने झूठ बोल रहा है, ठीक है? ये अल्लाह नहीं बोला, मैंने नहीं रिवाइंड बोला। करके दिखाऊं आपको, रिवाइंड करके दिखाऊं आपको कि आपने बोला था कि अल्लाह नहीं बोलता है। मैंने बोला और अगर अल्लाह नहीं रिवाइंड बोलता है, करके अल्लाह आपकी मुंह से स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपकी बुंड मार देनी है और मुंह से फाड़ देनी है निकाल के। झूठे मक्कार। मैंने जब तुमने अपना आर्ग्यूमेंट चेंज किया था, मैंने उस वक्त बोला था कि तुम अपना आर्ग्यूमेंट अब चेंज कर रहे हो, अल्लाह मुंह से नहीं बोलता। मैंने फिर तुमसे दोबारा पूछा था सेकंड टाइम, क्या अल्लाह बोलता है? तुमने कहा था नहीं बोलता है। मैंने कहा था अब मैं तुम्हें कुरान से दिखाऊंगा कि अल्लाह बोलता है, मुंह से या बुंड से, इररिस्पेक्टिव। दैट वाज नॉट द पॉइंट। मेरा सवाल जीरो दोबारा से अब तुमसे करता हूं, क्या अल्लाह बोल सकता है चाहे वो किसी भी जगह से बोले?
That is not the point کہ وہ کہاں سے بول رہا. جواب دیں. سنو میں پہلی ایک بات کلیئر کروں, اب بیچ میں نہیں بولنا, اب نہیں بولنا ہے, جلوی بنا. کچھ بات سمجھانے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں, جو بھی ویورس ہے نا, آپ کو اب جو ان کا سن رہے ہو نا, تو اللہ آپ کا دماغ میں جیسے بھی آتا ہے کبھی وہ ایسا نہیں ہوتا, بیونڈ دی مائنڈ ہوتا ہے وہ. کیونکہ آپ جب بھی آپ کا آتما دیکھیے تو آپ کو نہیں دکھتا. اس کا یہ مطلب نہیں آتما کو کوئی باڈی یا ساؤنڈ کا کوئی ضرورت نہیں ہوتا ہے. یہ پوائنٹ ہے, پہلے آپ سنیے, آپ کی ان کے بہکاوے مت آئیے. دوسری بات, اللہ بولا ہے تو آپ کا حساب سے ہم صرف منہ سے بولتے ہیں, ہم ایک مخلوق ہے. انسان کے لیے بولنے کے لیے منہ چاہیے ہوتا ہے, اللہ کو بولنے کے لیے منہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. یہ کمنٹ ہے میرا. دوبارہ سے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے, جلیبی بنائی ہے. دوبارہ سوال کرتا ہوں, کیا اللہ بولتا ہے؟ ارے یار, میں نے ابھی جواب دے دیا تو دیا. نہیں دیا. کیا اللہ بولتا ہے؟ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں, جب تک سوال جواب نہیں آئے گا کہ نہیں کر سکتے. ایڈم صاحب سمجھنے والے, اچھا افضل صاحب رکو, افضل صاحب رکو, تھوڑا رکو. ایڈم صاحب اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے نا کہ بھائی جو ہے ہمارے وہ انڈیا کے ساؤتھ ریجن سے ہے, تو ان کو ہندی تھوڑا اتنا سمجھ میں. ارے تم چپ رہو, تمہاری سائڈ لے کے ہی بول رہا بھائی, چپ ہو جاؤ تھوڑا. وہ جلدی سے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. افضل صاحب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے. انہوں نے آپ سے یہ بالکل سوال نہیں کیا کہ منہ سے بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے. منہ سے بولتا ہے, اوپر سے بولتا ہے, نیچے سے بولتا ہے, وہ سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے, اس کا آپ پلیز جواب دو پلیز. ٹھیک ہے, میں اب یہ کلیئر کر سکتا, اب میں سمجھ گیا. اللہ جو انسان بولتا ہے نا ویسا نہیں بولتا ہے, جو ہم منہ سے بولتا ہے نا ویسا نہیں بولتا ہے. اللہ کا الگ ہی ہوتا ہے, وہ ہمارا انسان دماغ میں نہیں آتا ہے. آپ کا کلیئر ہو گیا؟ اللہ بولتا ہے نا, اللہ بولتا تو ہے. تھینک یو ایڈم صاحب, اللہ بولتا ہے. چلو اتنا شکر ہے یار, شکر ہے. شکر ہے جو سمجھنے والے جب اللہ نہیں, میں ایک سوال کروں. اوکے, سو فائنلی آفٹر 15 منٹس مجھے جواب مل گیا کہ اللہ بولتا ہے. بہترین افضل خان, بہت بہت دھنیہ واد آپ کے. دوسرا سوال اب کرتا ہوں, جب اللہ بولتا ہے تو کیا وہ ایک ایسی لینگویج بولتا ہے جو لینگویج وہ انسان سمجھ سکے جو انسان کو وہ بول رہا ہے؟ جی پھر سے ریپیٹ کریے. جب اللہ بولتا ہے تو کیا وہ ایسی لینگویج بولتا ہے جو لینگویج وہ انسان سمجھ سکے جس کو وہ بول رہا ہے اللہ؟ قرآن کس کا ہاتھ میں دیا ہے اللہ نے؟ یہ میرا سوال نہیں ہے. نہیں, میں آپ کا سوال, قرآن کس کا پاس نہیں دیا ہے؟ نبی کا ہاتھ میں دیا ہے نا, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں دیا ہے نا. انہوں نے صحابہ کو سمجھایا ہے, وہ ان کا عربی بھی تھا نا, تو نبی اللہ نے نبی کی ان کا گیان دیا. قرآن کے جو گیان ہوتا ہے نا وہ نبی کو دیا ہے, نبی کے تھرو صحابی کو دیا ہے. Can you ask him the question جو میں نے کہا ہے, شاید آپ سوال کریں. آپ ایک بار ریپیٹ کرو تو میں ایگزیکٹ ان کو سمجھاتا ہوں. جب اللہ کسی انسان سے بات کرتا ہے تو کیا وہ اس انسان سے اس لینگویج میں بات کرے گا جو لینگویج وہ انسان سمجھ سکتا ہے؟ اچھا, ہاں یا نا؟ افضل صاحب جب اللہ بات کرتا ہے, چونکہ ابھی آپ نے ایک پوائنٹ پہ اگری کیا تھا کہ اللہ بولتا ہے, ٹھیک ہے, آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ بولتا ہے اور جس سے بول رہا ہے تو کیا اس لینگویج میں بولتا ہے جو جس سے بات کر رہا ہے, جس بندے سے اپنے بات کر رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے؟ کیا اس لینگویج میں بات کرتا ہے یا کسی اور لینگویج میں بات کرتا ہے اللہ؟ ارے یار, یعنی اگر موسیٰ سے بات کر رہا ہے, جیسے مثال کے طور پہ یہ آیت لے لو آپ, اگر سن لو نا بھائی, آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر موسیٰ سے بات کرتا ہے جیسے اس آیت میں ہے, تو موسیٰ کو جو لینگویج سمجھ میں آتی ہے اس لینگویج میں بات کرتا ہے یا کچھ الگ لینگویج میں بات کرتا ہے؟ اس کا جواب دو.
मूसा नबी को जो तौरात दिया है ना, जो तौरात का बादशाह है उसी में दिया है। मतलब सामने वाले की समझ में जो आता है उस लैंग्वेज में अल्लाह चेंज कर देता है, राइट? कौन सा? हाँ, वही चेंज करके देता है। जो नबी का अच्छा, जो वो नबी का जो भाषा आता है, जो नबी का जो मल्टीपल भाषा होता लैंग्वेजेस है में बात वही। करता है एडम साहब, ये बोलना चाह रहे हैं कि अल्लाह मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर रहा है, और मतलब जिस वक्त जिससे जिस बात बंदे से कर बात रहा है। करेगा उससे उसी लैंग्वेज में बात करेगा, राइट? मैं पहले क्लियर करता हूँ, रुकिए आदम साहब, रुकिए। जो आपका जो माइंड में जो अल्लाह बसा है ना, वो आप जैसे भी इमेजिन करो। भाई मुझे नहीं इमेजिन करना, वो मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो मेरा क्वेश्चन ही नहीं है इस वक्त। मैं क्यों इमेजिन करूं अल्लाह को? क्यों इमेजिन करूं? मैंने इमेजिन नहीं करना। डोंट टेल मी इमेजिनेशन ऑफ अल्लाह। अब वापस आते हैं आपके आयतुल कुर्सी पे। 2 सवालों के जवाब कंप्लीट हो गए, अब आयतुल कुर्सी पे आते हैं, क्योंकि ये सवालों के जवाब बहुत जरूरी थे आयतुल कुर्सी को समझने के लिए। जी अफजल खान, अब आते हैं आयतुल कुर्सी में। अल्लाह कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो है जो जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है, जो कि जिंदा है और कायम है, कय्यूम है, सस्टेनर है। ये आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा है। क्या मेरी इस ट्रांसलेशन से आप एग्री करते हैं? मैं ट्रांसलेशन करूं इसको अरबी? आप कर लें। अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इल्ला गलत हुवल ट्रांसलेशन, हय्युल कय्यूम। गलत ट्रांसलेशन। हाँ, हाँ, तो आप सही बोल दो, कर दीजिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आप अभी बोलिए, मैंने की थी, अब बताइए। अभी जो मैंने की थी ट्रांसलेशन जरा रिपीट करेंगे? मुझे पता लगे आप मेरी अल्लाहु ला बात भी सुनते हैं कि इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं है, इलाह नहीं है, ठीक है। इलाह नहीं है, खुदा नहीं है, करेक्ट। हाँ, ओके। हुआ का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप? मैं बताऊंगा, वो आप नहीं बता सकते हैं? नहीं, आप जानते तो बोलिए, मैं उसके बाद आपको बोलूंगा। मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने आपको पहले दोबारा से नहीं अपनी नहीं, ट्रांसलेशन में बताया था। आप जैसे अल्लाह, आप सुनने जैसे मेरी पूरी ट्रांसलेशन को सुने। अल्लाह नहीं है कोई अल्लाह नहीं इलाह होता, अल्लाह अल्लाह के होता, सिवा अल्लाह, नहीं। ओ अल्लाह, माय अल्लाह, गुडनेस। अल्लाह होता। अब अरबी सीखना चाहिए पहले। अल्लाह होता है, अरे प्रोनाउंसिएशन ठीक रुकना से रे होना भाई, अफसल तेरे को कैसा लोग झेलते भाई। रुकना, अब तूने पूछा तो ट्रांसलेशन फिर से कर रहे, थोड़ा सब्र रख रे भाई। क्यों गाली सुनना चाहता है? चाहिए। थोड़ा ठीक है, सब्र रख अभी सुन। हाँ बोलो एडम साहब। नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा जो जिंदा है और कायम है, कायम करने वाला है। प्लीज, मैंने इसमें क्या गलत बोला ये बताइए? ये गलत, ये आपने जो ट्रांसलेशन वो कय्यूम करने वाला कभी नहीं होता। हुआ, अल्लाह जो है हय्युल कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला है। इसका ये कायम करने वाला नहीं होता है। ओके, ये कय्यूम का पहली, मतलब क्या होता है? कय्यूम का मतलब क्या होता है? कय्यूम का मतलब हमेशा कायम रहता है। कय्यमा, कय्यम, आप जो अरबिक पढ़ाते हैं ना, कय्यम कय्यम तो कय्यम एडम को ने भी तो वही बोला था रे भाई। कय्यूम, क्या आप यार, इन्होंने जाहिल बंदा। रिपीट करिए। भाई इतना जाहिल होता तो मैं इतनी बजाय देर तक इसके आपसे बात बजाय करता। इसके कि आप बजाय इसके कि आप इस चीज पे फोकस करें कि आपने किस चीज को पकड़ना है, सबसे पहले आप मेरी बात को सुने, ताकि आपको पता लगे कि आपने मेरी किस चीज को पकड़ना है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप पकड़ नहीं सकेंगे मेरी किसी बात को। दैट विल बी अ लेम एंड स्टुपिडिटी। अच्छा, ठीक है? मैं ठीक है, आपकी अरबी ओके। सिखाता हूँ, अरबी कैसा पढ़ते हैं, नाउ ठीक है, कमिंग मेरे बैक टू सेम सुनिएगा। पॉइंट। नहीं, अरबी नहीं सिखाया आप। मैंने अरबी आपकी देख अरबी ली है कि अरबी आपको अरबी नहीं, पढ़नी नहीं आती। आप प्लीज जब शट अप, प्लीज शट अप। आपको अरबी पढ़नी नहीं आती, हम देख चुके हैं। साहिल ने आपको करेक्ट करने की कोशिश की थी, मैंने साहिल को चुप करवा दिया था। प्लीज डोंट टेल मी हाउ टू रीड अरबिक। हम यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे अगर ये बात अल्लाह ने खुद ने कही है तो अल्लाह को बिल्कुल वैसे ही कहना चाहिए था जैसे उसने मूसा को कहा था, इन्नी अना अल्लाह। यहाँ पे अल्लाह खुद नहीं कह रहा, ये कोई और कह रहा है। मुझे बताइए ये कह कौन रहा है अल्लाह के बारे में, प्लीज। आप गुमराह कर रहे हैं भाई, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुमराह कर रहे हैं भाई। जो जिसको जो जो अकल से दुश्मन होता है ना, भाई अकल इसका के जवाब दे दुश्मन दें, जो वो मेरा गुमराह सवाल है कर वो रहा है। उसका नहीं जवाब नहीं दे दें प्लीज। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आप म्यूट नहीं करें, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सर आप ये जो नहीं कहें कि हम सवाल गुमराह कर करें, रहे हैं सीधा ना, जवाब दें नहीं ताकि पता लगे। नहीं, गुमराह,
गुमराह, आपका अच्छा सवाल ही तू सीधे गुमराह कर रास्ते रहा पे है। लेके आ जा हय्युल अफजल। कय्यूम का अफजल नहीं, हय्युल कय्यूम का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाला, ठीक है? नहीं, नहीं होता, नहीं फिर क्यों, नहीं फिर होता। क्या होता है आपका हिसाब से, क्या होता है फिर बोलिए। अब फिर कौन सा तफसीर लाएंगे, बोलिए, लाए यार तफसीर लाए, ये देखे, लाए कय्यूम तफसीर क्यों लाए, होता तफसीर है? द सस्टेनर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, क्या मतलब है इसका? सस्टेन। नहीं आपको आप जो कहां से आप सर ये दोबारा, लाते हैं सर मुझे सर हेलो हेलो, कय्यूम मैं के ऊपर मैंने माउस किया है, इस पे लिखा हुआ है द सस्टेनर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है? आप भी बताइए। जो एग्जिस्टेंस में चीजें हैं उसको सस्टेन रखने वाला, उसको कायम रखने वाला। नहीं ये इसका मायना नहीं है सर, ओके, कोई बात आपने नहीं, गलत पढ़ा आई है, डोंट ब्लडी आपने केयर, गलत आई पढ़ा डोंट ब्लडी केयर, आई डोंट ब्लडी केयर व्हाट दैट मींस, ओके, केयर मुझे नहीं हो, परवाह तुझे नहीं है क्या पता ही मतलब है। नहीं है, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं, यहाँ पे तू अल्लाह के गलत बारे बता में रहा कोई है बता रहा है, नहीं सर नहीं, सवाल मेरा ये है, तुमने यहाँ पे हर अल्लाह के बारे में कोई बता रहा है, वो कौन है जो बता रहा है अल्लाह के बारे में? नहीं, तू अल्लाह ही बोल रहा है ना। अल्लाह अगर अपने बारे में बोलेगा, वो कहेगा मैं हूँ खुदा और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मैं हई हूँ और मैं कय्यूम हूँ। यहाँ पे मैं अल्लाह नहीं बोल रहा, यहाँ पे मोहम्मद कह रहा है अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं, वो अल्लाह हई है और वो अल्लाह कय्यूम है। वो ये एक तीसरा बंदा बता रहा है, ये एक तीसरा बंदा कौन है जो अल्लाह के बारे में बता रहा है? अब भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आपको मैंने बोला, आप जाके बोले मैं खाना खाया हूँ, तो आप जाके सामने क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा जाके कि अफजल खान खाना खाया है। अरे भाई मजाक बहुत अच्छा किया तुमने। मजाक क्या क्या, मतलब? सही तो बोला भाई। मैंने और बोला, मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोला, सुनिए, सुनाइए। अफजल खान ने खाना खाया है, यही बोला गया ना आप सामने जाके? तो बिल्कुल, उधर अगर आप यही मुझे बोल रहा है बोलोगे। ना, अल्लाह, हाँ अल्लाह जब जिब्राइल को जब कुरान दिया था ना, जी तो अल्लाह जी। नबी को सुनाया था, ठीक है? हम्म तो यही सुनाया ना, अल्लाह ला बिल्कुल। इलाहा इल्ला हुवल तो हय्युल बेसिकली, हय्युल। हाँ हाँ अफजल अफजल, अब सुनो, बैक स्टेज इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम बीच में इंटरप्ट ना करो। बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। आपने मस्त कहा कि एग्जाम्पल दी। मैंने खाना खाया और मैंने एडम तुम्हें बताया, तो एडम जब तुम जाके बताओगे क्या बताओगे? मैं जाके बताऊंगा अफजल खान ने खाना खाया। इसका मतलब है कुरान में ये अल्फाज अल्लाह के नहीं है, ये अल्फाज जिब्राइल के। अल्लाह ने जिब्राइल को बताया मैं वो हूं और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मैं हई हूं और मैं कय्यूम हूं। जिब्राइल जब मोहम्मद के पास आया तो उसने चेंज किया, क्योंकि अब उसने अल्लाह का पैगाम मोहम्मद को देना है। तो जिब्राइल ने अल्लाह का कलाम चेंज करके बोला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं, वो हई है और वो कय्यूम है। इसका मतलब है कि कुरान जो है वो जिब्राइल का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। साहिल भाई समझ लगी बात? हाँ, मैं इनके तरफ से एक दिफा करूं। पहले ठीक है इनको कर ठीक है, लेते फिर आप साहिल जरूर भाई कीजिएगा। रुकिए, साहिल भाई रुकिए रुकिए उसको कर लेते। रुकिए, आदम ना भाई, तो मैं भाई मैं क्या कर दूं आपकी तरफ से क्या दिफा। बेवकूफी का बात कर रहे हो यार मैं तुम। आपकी हेल्प कर दूं अफसल भाई। मैं आपको बहुत इज्जत करता था, आपका जो ज्ञान है ना। अरे भाई, मैं इज्जत करते थे, सब करते थे, वो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। एडम साहब को वो मैं बता दूं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं, मैं बता दूं आपको उसको, एडम साहब को। आप पहले बताइए, उसके बाद मैं मेरा बताऊं, ठीक है? बोलिए। अच्छा, एडम साहब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो थर्ड पर्सन में बात करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली मोहम्मद साहब से कलाम नहीं कर रहा है। तो जब वो मोहम्मद साहब तक पहुंचाता है कलाम, तो थर्ड पर्सन में कलाम पहुंचाता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इस हिसाब से पूरा कुरान जो है वो थर्ड पर्सन में होना चाहिए। क्यों अफजल खान, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? अग्री करते हैं मेरी बात से? यही मैं कहना फिर चाह रहे से थे आप? मैं फिर से मेरा मिसाल पे आ जाऊं। नहीं साहिल, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा साहिल। अच्छा, हंसो मत यार, हंसो मत यार। सुनो सुनो सुनो, तुम हंस के गुमराह करते हो ना मेरे को, नहीं नहीं, बड़ा तुम बेकार। तुम सुनिए बगैर ऐसे गुमराह कर दो। नहीं नहीं, अफसल तुम सुनिए। जो भी आर्गुमेंट मैं दोगे ना मैं फंसो जब के, हंसता हूँ ना, सोच समझ के आर्गुमेंट देना। मैं क्यों हंसता हूँ पता है? जब आपका नस पकड़ लेता हूँ ना मैं, जब मेरे को हंस आता है, आपका जो नब्ज होता है ना वो पकड़ता हूँ मैं,
एक करके तब हंसता हूँ। कॉन्फिडेंस है यार, लेकिन इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है यार। यार साहिल वैसे मुझे समझ लगती है इन लोगों की, अबे पढ़ कुत्ते के आया हूँ हुआ जो है, मैं। जलील हुआ है, आर्ग्यूमेंट में तबाह बर्बाद हो गया, इसे पता है खत्म हो चुका है, लेकिन मैं नब्ज पकड़ रहा हूँ, मैं नब्ज पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं हंस रहा हूँ, साला ये नब्ज पकड़ रहा है और हद होती है यार। किधर गया ये? हाँ भाई पकड़ना बस, पकड़ना बस, नब्ज पकड़, नब्ज पकड़, चल जवाब जब दे। मैं खत्म हो गया। अब जब तुम 100 दिन भी आर्गुमेंट करोगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ सबके साथ, मैं 100 दिन भी यार आके तुम्हारे जवाब तो दे दे, चैलेंज में तेरे 100 दिन कर ही नहीं सकता, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागलखाने में चला जाऊंगा तेरे 100 दिन आर्गुमेंट किया तो। जवाब दे दे इस बात का। अभी कौन सा तुम पागलखाने में नहीं हो भाई? यार अभी कौन सा पागलखाने में नहीं हो तुम? इसका सुनिए, जवाब देगा। मैं पुराना मैं एग्जांपल में आता हूँ। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं खाना खाया हूँ, आपको सामने जाके बोलिए तो वर्ड वही सेम होगा ना? मैं खाना खाया हूँ, वर्ड उधर चेंज नहीं तो होगा ना? लोग समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे वो लोग। जब ओके तुम थर्ड तो पार्टी का जो दोबारा एग्जाम्पल बताता हूँ, जो दोबारा कर रहे बताता हो हूँ, ना, दोबारा बताता हूँ। हाँ, आप खाना खाया हो, आप किसको बताया है? आप फिर लोग थर्ड पर्सन में जा रहे हो भाई। नहीं, मैं थर्ड पर्सन में जा ही नहीं रहा। कौन है थर्ड पर्सन? मुझे नहीं पता थर्ड पर्सन कौन है। थर्ड पर्सन मैं आप सिंपल सी ये बात कर रहा हूँ, आपने खाना खाया है, किसको बताया है? अब अब गुमराह करने में बहुत माहिर है भाई। वाओ यार अफजल, अफजल गुमराह करने में तुम्हारा मोहम्मद बहुत माहिर था। आई एम गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द स्टुपिडिटी दैट यू आर रिपीटिंग अगेन अगेन। ओके, अच्छा एडम साहब, मोहम्मद था माहिर, मोहम्मद था माहिर। ठीक है, मोहब्बत अच्छा साहब का पैर अफसल के नीचे अफसल से अफसल रुक जा कभी भाई। समझ नहीं। अरे ठीक अफसल है, रुक जा। हैं? अरे रुक अरे अफसल, इतना रुक थोड़ा, रुक रुक। अबे रुक ना, तेरे को बचा रहा हूं मैं, थोड़ा रुक ना। ये देख, तूने कहा मैं खाना खाया हूं, ठीक है, ये अफसल का डायलॉग है। अब ये अफसल को डायलॉग एडम साहब को पहुंचाना है। इसको इंग्लिश पढ़ने भी ये मतलब रोमन पढ़ने आती है नहीं आ पाती, क्या पता, देखते हैं। आप सल तेरी आवाज आपने कहा मैं खाना खाया हूं, अभी आप एडम साहब को पहुंचा रहे हैं कोई मिडिल मैन के जरिए से, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? मतलब तो मैं जब वो उसको बोल रहा हूँ ना यार, पहुंचेगा जाके एडम उसको साहब के पास, मैं, वो स्टेटमेंट क्या होगा? अब थोड़ी देर चुप रहेंगे, मैं बोलता हूँ साहिल साहब। मैं बोलूं? हाँ मैं नोट डाउन करूंगा। आप वो जब हाँ, एडम साहब तक पहुंचेगा तो अब आपका ये जो कलाम है, इधर जो मैं खाना इधर खाया जो हूं, सब्जेक्ट ये है ना, क्या होगा? हाँ, मैं खाना खाया हूँ, तो अब सामने वाला जो बोला है, अब मैं सामने वाला की बोल रहा हूँ, ये बोल देना जाके मैं खाना खाया हूँ। ओके, हम्म तो असल में जो खाना खाया वही आगे वाला समझेगा ना, वही बताएगा ना। हम्म वो मेरे को बोला है सामने से, वो उसका दिमाग में नहीं आएगा, यही आएगा मैं हम्म खाना खाया हूँ, वो मुझे बोलने बोला है। ठीक है, आप समझ मतलब गए? जब एडम साहब तक, अरे रुकना भाई, जब एडम साहब तक ये कलाम तेरा पहुंचेगा तो कलाम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, मैं खाना खाया हूं। हाँ वैसा ही रहेगा, ऑफ कोर्स वैसा ही रहेगा ना। थैंक यू। अब जो हाँ आयत जो आपके सामने पेश की गई है, फर्स्ट हाँ मतलब ये आयतुल कुर्सी की, उसमें भी हाँ, ऐसी होना चाहिए था। सुन, अभी ऐसा ही सुन ले होना। भाई, तूने हाँ ये, अरे रुक, ये देख, ये तूने एकदम परफेक्ट बोला, ठीक है। हाँ, ओके। अब इसी आर्गुमेंट के हिसाब से आयतुल कुर्सी की पहली आयत होना चाहिए था, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल हय्यू और अल चलो कय्यूम हूं। ऐसा होना चाहिए था ना? भाई, वही तो उधर है, अल्लाह ला नहीं इलाहा इल्ला है, अल्लाह का। सबसे पहले ये भाषा ये तो है, कंफर्म है ना? भाषा है ना अरे भाई। रुकना, तुम ए रुक किसे पे, क्यों गुमराह करो, क्यों अरे गुमराह करो? रुक किसी और बेवकूफ मत बनाओ। अफसल, अफसल रुक, पहले तू अग्री करता है कि मैंने जो लिखा वैसा होना चाहिए? वैसा ही है ना उधर भाई, और क्या अग्री चेंज है करता है उधर? ऐसा होना चाहिए? नहीं, उधर अब मैं बोल रहा हूँ, अब से ठीक है, मेरा एग्जाम सुनिए, ठीक है? अरे तेरा हैं? एग्जाम्पल तेरे पिछवाड़े में डाल बे, तेरे एग्जाम्पल को ही लेके मैं बात कर रहा हूं।
तू ये एग्री करता है कि स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए? मैं कैसा एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल तो आप मान ही नहीं रहे, आपका स्टेटमेंट आप चला रहे तेरा एग्जाम्पल तो लिया ना यार, ये देख इधर, ये तेरा एग्जाम्पल तो लिया। कौन सा? हाँ मेरा एग्जाम्पल मैंने लिया। ओके ओके बोलिए आगे बताइए। है ना, तेरा एग्जाम्पल लिया और तूने बताया कि वैसे का वैसी स्टेटमेंट होना चाहिए। उस हिसाब से अल्लाह जब अपना स्टेटमेंट देगा तो वो ऐसा देगा ना, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल हय्यू और अल कय्यूम हूं, है ना, ऐसी होना चाहिए ना स्टेटमेंट। वाह क्या बात है यार, क्या बात बेबसी है। पे अपने आप इसलिए इसलिए आदमी इस्लाम से बाहर गया, इतनी सी छोटी बात आपको समझ नहीं आई भाई, साहिल भाई। छोटी बात, छोटी, इतनी छोटी बात आपको समझ नहीं आई। ठीक है, तो अरे स्टेटमेंट यार ऐसी रहेगा ना प्यारे भाई। यार इतनी छोटी सी बात। एडम साहब, मैं आपको इजाजत देता हूं, इसको 2 गाली दो, इसको हकालने का है। मोहम्मद साहब को नहीं बोलना, इसको 2 गाली दो, इसको निकालने का अपने को। मैं क्या कह रहा हूँ यार साहिल, अब मैं इसलिए चुप करके म्यूट करके बैठ गया था। मैं कहा यार देखता हूँ ये कितनी देर लगता है इसके साथ। यार साहिल सीरियसली यार, देयर इज अ लेवल ऑफ स्टुपिडिटी, दिस गाय इज बियॉन्ड। दिमाग की अपंगता की भी एक वो क्या बोलते हैं उसको, सीमा होती है यार।